मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह ने आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। पीएम मोदी ने मालदीव को लगातार सहायता देने की बात दोहराई। कहा, दोनों देशों की मित्रता हिंद महासागर जैसी गहरी। और इजराइल और यूएई के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए बनी सहमति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बताया नए युग की शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करेंगे। संबोधन आज शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। संबोधन दूरदर्शन पर पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। साथ ही दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों में क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, तो वहीं आकाशवाणी में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। और इस सब के बीच आपको बता दें कि कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। हर तरह के खतरे को ध्यान में रखते हुए एनएसजी, एसपीजी और आईटीबीपी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली भी स्थापित की गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। लाल किले में मुख्य आयोजन स्थल को सुरक्षित करने के अलावा राष्ट्रपति भवन में समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और किरण रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करने वाले हैं। अभी इस वक्त वो लॉन्च कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। It boosts your patriotism. It makes you feel more for your nation. These are some of the thoughts which gives tremendous strength in the way you perform and you think as a citizen of India. The BSF DG, because I have closely worked with our officers in the Home Ministry days, I very well know what is the absolute beautiful culture in our forces. So CRPF being the largest central armed forces in the world, it will be a massive exercise if the entire CRPF, the BSF, the second largest, and ITBP, our Himveer, they'll be in the extreme high altitude. So these forces, the personnel, along with the family, friends, they can galvanize, influence the society wherever they are posted, where they are headquartered. So it will be a tremendous thing to see the uniformed people leading the Freedom Run. And then, of course, our CBSE has already been mentioned. It is such a huge organization, and already we have seen so much of activities in different schools across the country. And then we are going to see many more in the days to come. So HRD ministry is very important in terms of driving the Fit India movement. And then our chairman of the CISE has given a very beautiful tips and what they are thinking in their council. So these are going to add very important, values to the entire campaign. And the railways, I must compliment the railway ministry. There was one fitness machine installed in one railway station in the one of the Delhi, I think, railway station. My friend Railway Mantri Piyush Goyalji tweeted it, and it was one of the most viewed video of that time. And then I told the minister that please, install many more such fitness that machine in the railway station where you do sit up, and if you perform, say, 20, 30 sit-up, you get the railway platform ticket free of cost. So these are very innovative ways to engage and encourage the citizens. And then, of course, Vivek Singh Procam, I have been closely associated with all the wonderful marathon events being organized and all record-breaking marathon events. I'm very delighted that he is part of today's this panel discussion, and look forward to
join in some of his events where all celebrities, former athletes, present athletes, old, young, boys, girls, men, women, everybody takes part. It's like a celebration. It's like a festival. So it's always been great to take part in such a marathon event. And Vishal Gondal from Gucci, of course, Gucci is a well-known organization in terms of promoting sports, fitness in the country. They are the leading light in this particular field. And of course, I must tell you that in the ministry, our two youth organizations, the NYKS and NSS, they are the largest youth organization in the world. We have the largest human capital. NYKS has close to 35 lakhs volunteers, and NSS has 40 lakhs volunteers. So we have decided to increase the number of volunteers to above 1 crore within the next few months. So this is a mission Honorable Prime Minister desires, that more youth should come and join the art of and the work of volunteerism. And volunteerism is something which we require in India, and especially in this pandemic time, we will need more volunteers to take an active role in fighting the pandemic and assisting the citizens, especially the vulnerable section of the society. And then, of course, our own sports body in the SAI. Tomorrow, my only suggestion is all the Sports Authority of India training centers, of course, most of the training centers are closed now, but most of the trainees are in their respective places. So the messages must be sent and they must reach each athlete, and they must be able to promote all our elite athletes, the Olympians, the medalists, the champions. They will all take part, and then there should be event everywhere. And our director Ekta has already explained how this virtual run, how to conduct it, how to register. So we will need to update once again how to register, how to make ourselves, very conveniently part of this virtual run, Fit India Freedom Run. So there are certain things, because of the COVID thing, we have to follow the social norms, certain guidelines being issued by the Ministry of Health and Ministry of Home Affairs, and we are working together. We have these SOPs being planned out. So we will also need to send across messages to all the state governments and their different units. And my request is, tomorrow from the early morning, this Fit India Freedom Run, it must start trending. We have to create a record. We have to, I'm not competing with the Ministry of Textiles for that, that vocal for the handmade, which had a total click of 2 billion, I think. It was a record. So we must be, because this fitness thing, Fit India is something which everybody can relate to. So we should be able to make trend from the early morning. We should create the trend from today itself. By this evening, this Fit India Freedom Run and Fit India movement, these two hashtags. Along with that, we can create some more hashtags. तो खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन को। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके अपमानजनक ट्वीट के कारण उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। प्रशांत भूषण को मुख्य न्यायाधीश और उनके 4 पूर्ववर्तियों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट उन्होंने किए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया। न्यायालय सजा के मुद्दे पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इस मामले में प्रशांत भूषण को 6 माह तक की सजा हो सकती है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ ये मामला है प्रशांत भूषण को और कितनी सजा इस मामले में हो सकती है?
चंद्रशेखर, जैसा कि आप बता रहे थे कि 6 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि अवमानना के मामले में कोर्ट अधिकतम है 6 महीने की सजा। कोर्ट को कई बार सांकेतिक तौर पर भी दंड देता है, जिससे कि एक मैसेज भी चला जाए और वो बहुत कठोर भी ना हो। बात जहां तक है उनके 2 ट्वीट्स को लेकर है, जो विवादास्पद ट्वीट थे। पहला उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस फिजिकल कोर्ट हियरिंग से में मौजूद नहीं है, और उनकी एक फोटो आई थी, उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। और दूसरा ट्वीट उनका था जिसमें उन्होंने न्यायालय की जो स्वतंत्रता है उस पर सवाल खड़े किए थे। इन दोनों ट्वीट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी गई थी एक वकील की ओर से। उन्होंने याचिका भी एक दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने फिर स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई शुरू की। इसमें ट्विटर इंडिया को भी पार्टी बनाया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि ट्विटर को उन्होंने इस मामले से हटा दिया है, क्योंकि वो सिर्फ एक मीडियम है और जैसे ही गलती ट्विटर के सामने आई वो अलग कर दी गई। अब प्रशांत भूषण के खिलाफ दोनों ट्वीट्स को लेकर जो शिकायत थी, उस पर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कोर्ट को स्कैंडलाइज करने के बराबर है, यानी कोर्ट को आप विवादों में घसीट रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है, और इस तरह के कृत्यों को कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आमतौर पर इस जो मामले होते हैं अवमानना के, और खासतौर से जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उठाई जाती है, तो कोर्ट एक मैग्नेनिमिटी दिखाता है, बड़ा दिल दिखाता है। लेकिन ये जो 2 ट्वीट्स थे, ये एक तरीके से फाउंडेशन पर, उसकी आधारशिला पर हमला है न्यायपालिका की, और इसीलिए इसमें कोर्ट किसी भी तरह से इसको अनदेखा नहीं करेगा। अब सजा क्या कोर्ट देती है, ये 20 अगस्त के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन इन दोनों ट्वीट्स को कोर्ट ने अवमाननापूर्ण माना है और प्रशांत भूषण को इसके लिए दोषी करार दिया है। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। और अब चलते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में पिछले करीब 1 महीने से चल रहे सियासी घमासान के बाद आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट समेत सभी विधायक विधानसभा पहुंचे। सत्र शुरू होने के कुछ देर बाद ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बहस को अनुमति दे दी है। और अगर विधानसभा के सियासी गणित की बात करें तो राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है। इनमें वर्तमान में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इसमें सचिन पायलट के समर्थन में पार्टी से बगावत करने वाले विधायक भी शामिल हैं। वहीं भाजपा के पास 72 विधायक हैं, बसपा के 6, आरएलपी के 3 और निर्दलीय 13 विधायक हैं। इसके साथ ही अन्य 5 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 101 है। तो ये कुल सदस्य संख्या है 200। कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जिसमें बागी विधायक भी शामिल हैं। भाजपा के 72, बसपा 6, आरएलपी 3, निर्दलीय हैं 13 और अन्य हैं 5। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 101 का आंकड़ा है। धर्मेश भारती हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश, सबसे पहले तो 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, तो अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अब तो सत्र शुरू हो गया होगा वहां पर। और दूसरा सवाल ये कि ये जो बीएसपी ने व्हिप जारी किया है, इसको किस तरह से वहां पर लिया जा रहा है? क्या कुछ सियासी गणित बन रहा है वहां पर? देखिए, जहां तक असेंबली के शुरू होने का सवाल है, लगभग ठीक 1 बजे के आसपास जो है विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। विधानसभा के अध्यक्ष ने सबसे पहले नियमों में शिथिलता देते हुए संसदीय कार्य मंत्री को 7 जो है अध्यादेश रखने की अनुमति दी। उसके बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा। विश्वास मत प्रस्ताव रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी और ये कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर अपने विचार रखेंगे। और हाल फिलहाल जो है वो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जो है वो सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने कुछ बिंदु उठाए तो उस पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने
कुछ बिंदुओं के ऊपर आपत्ति जताई है, लेकिन अभी फिर दोबारा जो है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अपनी ओर से सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर इस पूरी बहस का क्या नतीजा निकलता है। ये तो पूरी की पूरी कार्रवाई होने के बाद ही निकल कर आएगा। जहां तक आपने बसपा के विधायकों का जो जिक्र किया है, बसपा के विधायक जब सुबह विधानसभा पूछे और मीडिया से जब बातचीत की तो वो 6 के 6 विधायक एक साथ आए थे और सबने बड़ा स्पष्ट ये कहा कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। जी धर्मेश, ये बताइए कि अगर जो विश्वास प्रस्ताव वहां पर रखा गया है उसकी हम बात करें और जिस तरह का वहां पर गणित अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, 107 विधायक कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो बगावत देखी गई थी, क्या वो जो बागी विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार के खिलाफ बने हुए थे, क्या वो किसी तरह का स्टैंड अभी अंदर ले सकते हैं? देखिए, ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जब कल या परसों के बीच में जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात हुई सीएमओ के अंदर, और जब वहां पर सीएमआर के अंदर पूरी मीटिंग हुई तो सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। लेकिन चूंकि अब ये विश्वास मत रख दिया गया है और इसके ऊपर मतदान होगा, तब सारी स्थिति स्पष्ट होकर आएगी। हाँ, जहां तक बातों के अंदर और विचारधारा का जो सवाल है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो एक सत्ता का संघर्ष है वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर ये जो इनके बीच में अभी हाल फिलहाल जो समझौता हुआ है वो समझौता कितना कारगर होगा और कितना प्रभावी होगा, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। धर्मेश, ये बताइए कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं आज सवेरे के बाद से? देखिए, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, व्हिप जारी किया गया है और भाजपा इस पूरे के पूरे मामले पर एकजुट है। और भाजपा का कहना है कि जो सरकार पिछले 30 दिनों से ऊपर की जो बाड़ेबंदी थी और जो लोगों के काम नहीं हुए, उसके अलावा कोरोना का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और सरकार जो पिछले 1 माह से बाड़ेबंदी के अंदर बंद थी, ये सारे के सारे मुद्दे वो सदन में उठाएंगे और सरकार की जो नाकामियां हैं उनको वो उठाएंगे, ये भाजपा की ओर से कहना है। शुक्रिया धर्मेंद्र आपका। धर्मेश, आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे बात के बुलेटिन्स में भी इस मामले में लगातार बातचीत करते रहेंगे। और फिलहाल हम कश्मीर की ओर चलते हैं। श्रीनगर में नौगाम में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1 पुलिस जवान घायल है। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। और हमारे लड़कों को पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए, 1 जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं, लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं कौन है, जैश मोहम्मद ग्रुप का है, और बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोहों के तहत नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन को रक्षा मंत्री ने गुरुवार को लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। ये शिविर सैनिकों के लिए समर्पित है। इस अवसर पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से जंग में शहीद हुए चिकित्सकों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों को समर्पित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसमें शहीद हुए सभी कोरोना वॉरियर्स के नाम दर्ज हैं। उन पुनीत आत्माओं की पवित्र स्मृति को नमन करते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये दुनिया के बीमारियों के खिलाफ जंग के इतिहास में ये अमर रहेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोई ऐसा अच्छा काम करते रहें जिससे हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं और दूसरों के आँख में आए आंसुओं को पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता दिवस को मनाने का, उसके उल्लास को एंजॉय करने का इससे ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारत के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। वहीं ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2268 से ज्यादा दिन हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल को मिलाकर 2268 दिन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने संदेश में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की दोस्ती व्यापार और कूटनीति से ऊपर है। ये दोस्ती विश्वास और सम्मान पर बनी है। ये दोस्ती काफी गहरी है और लोकतंत्र, रक्षा सहयोग और प्रवासी गतिविधियों से चिन्हित है। मॉरिसन ने अपने संदेश में कहा कि हमारी साझेदारी हमारे क्षेत्र और वैश्विक समुदाय के लिए अच्छी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते दोनों देश अपने स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने कहा कि भारत हमारे लिए प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है। इन प्रवासियों ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे शक्तिशाली बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनाने में योगदान दिया है। कोरोना काल में केंद्र सरकार जहां देश को हर क्षेत्र में फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी और प्रगाढ़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी है। मालदीव सरकार ने इस पैकेज के लिए भारत का आभार जताया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने ट्वीट कर कहा कि मालदीव भारत सहयोग में एक ऐतिहासिक पल। हमें भारत की तरफ से बजटीय समर्थन के रूप में $25 करोड़ और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $50 करोड़ मिले हैं। मैं इस उदारता और मित्रता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने ट्विटर पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब देते हुए कहा कि धन्यवाद राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह। कोविड-19 महामारी से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए भारत अपना सहयोग जारी रखेगा। हमारी विशिष्ट मित्रता हिंद महासागर की तरह गहरी है और हमेशा रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। विदेश मंत्री ने महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के भारत की ओर से मालदीव के निरंतर समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP पर मालदीव सरकार के एक अनुरोध का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने भारत सरकार द्वारा मालदीव में GMCP के कार्यान्वयन का समर्थन करने की घोषणा की, जिसमें $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के वित्तीय पैकेज और $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई क्रेडिट लाइन शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि मालदीव में ये सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना होगी जो राजधानी माले और पड़ोसी 3 द्वीपों विलिंगली, गुलहिफाऊ और थिल्लुशी को जोड़ेगी। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच एयर ट्रेवल बबल स्थापित करने की भी घोषणा की। इसमें रोजगार, पर्यटन, चिकित्सा, आपात स्थिति आदि के लिए दोनों ओर से लोगों की आवाजाही की सुविधा होगी। विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए मालदीव पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ एयर ट्रेवल बबल का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पहली उड़ान 18 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। और आइए अब बात करते हैं कोविड-19 की। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 17,51,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी बढ़कर 71.17% इसको दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.95% पर आ गई है। अब देश में 6,61,595 मामलों के साथ 26.88% सक्रिय मामले हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना से अब तक 2,10,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक दुनिया भर में 7,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं दुनिया में कोरोना से 1,38,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।
वहीं कोरोना से दूसरे नंबर में ब्राजील सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 32,24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं इस महामारी से 1,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम के तहत संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच आपसी संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके साथ ही यूएई इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने वाले खाड़ी देशों में पहला और अरब दुनिया में तीसरा देश बन गया है। गौरतलब है कि 49 वर्षों बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंध सामान्य बनाएंगे। इस समझौते के मूर्त रूप लेने में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। अमेरिका, इजराइल और यूएई की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता से मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। ये समझौता तीनों नेताओं की साहसिक कूटनीति और दूरदर्शिता को दिखाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हो गए हैं। ये एक ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता है। इस सबके बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि यह पिछले 26 वर्षों में इजराइल और अरब दुनिया के बीच शांति की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति है। वहीं यूएई ने कहा है कि यह समझौता इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को अपने में मिलाने के खतरे से निपटने के लिए किया गया है। यूएई के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अनवर गारगश ने फलस्तीन और इजराइल के बीच वार्ता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। और आइए अब बात करते हैं खेलों की। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश के खलल के बीच पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी नहीं की। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय पाकिस्तान ने 5 विकेट 126 रन पर गंवा दिए थे। बारिश के कारण निर्धारित समय से पहले ही खेल समाप्त करना पड़ा। बाबर आजम 25 और मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर नाबाद थे। तेज बारिश के कारण चाय और लंच ब्रेक भी जल्दी लेने पड़े थे। आखिरी सत्र में पाकिस्तान ने 3 विकेट गंवाए और महज 44 रन जोड़े। आबिद अली एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ हद तक इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने 60 रन की पारी खेली। कप्तान अजहर अली एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और केवल 20 रन ही बना सके। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।